चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत्तो धमो मंगलम चत्तारी लुगतमा अरिहंता लुगतमा सिद्धा लुगतमा साहू लुगतमा केवली पनत्तो धमो लुगतमा चत्तारी शरणं पौजामि अरिहंता शरणं पौजामि सिद्धा शरणं पौजामि साहू शरणं पौजामि केवली पनत्तो धमो शरणं पौजामि चार शरण चार मंगल चार उत्तम करे जे भवसागर थी तरे ते सकल कर्म नो आणे अंत मोक्ष तना सुखले अनंत भाव धरीने जे गुण गाय ते जीव तरीने मुक्ति जाय संसार माई शरण चार अवर शरण नहीं कोई जे नर नारी आदरे तेने अक्षय अविचल पद होय अंगूठे अमृतव से लब्धि तना भंडार गुरु गौतम ने समरिये सो सदाय मनोवांछित फलदाता दीनालय आवो प्रभु मुख जोवने भवे भावे दीनालय आवो प्रभु मुख जोवने मने लागो छे प्रेम प्रभु तारो परम सुख पावाने प्रेम प्रभु तारो परम सुख पावाने भवन मा भूलो पड़ो परम सुख पावाने जासे ते मारा दुख परम सुख पावाने भवे भावे दीनालय आवो प्रभु मुख जोवने प्रेम प्रभु तारो परम सुख पावने।
પરમ સુખ પાવાને ભાવ છતાં અનાદિનો પર તરફ એનો ઉપયોગ પર તરફ એકત્વ બુદ્ધિ કરી છે એટલે પર તરફ જાય. જાણવાનો સ્વભાવ છે પણ જાણે છે ક્યાં પોતે નાયક રહીને જાણતો નથી. જાણવાનો સ્વભાવ હોવા છતાં પોતાને ઓળખતો નથી માટે એને મુશ્કેલ થઈ પડ્યું છે. રાગમાં રોકાઈ ગયો છે અનાદિકાળથી. એ પોતે નાયક હોવા છતાં પોતે ચૈતન હોવા છતાં વિભાવ તરફ એકત્વ બુદ્ધિ કરીને ભ્રાંતિમાં પડ્યો છે. પોતે પોતાને ભૂલી ગયો છે. એક આશ્ચર્યની વાત છે કે પોતે પોતાને છોડીને બહાર જાય છે. માટે પોતે પોતાને જાણે નાયક હોવા છતાં ઉદાસીન રહીને જાણતો નથી અને કરતા થઈને બીજાને હું કરું છું એવી કર્તૃત્વ બુદ્ધિ માં પડ્યો રહે છે. એક નાયક થતો નથી. એની પોતાની ભૂલ છે. ભ્રાંતિમાં પડ્યો છે. જાણવા છતાં પોતે પોતાને જાણતો નથી. એક આશ્ચર્યની વાત છે. જાણવાનો પુરુષાર્થ કરે તો જણાય એવો છે. એકત્વ બુદ્ધિ રાગ મિશ્રિત જ્ઞાન માં રાગ જુદો ને હું જ્ઞાન જુદું છે એમ જુદો પડે છે. આ જે રાગ ના વિકલ્પ આવે એ બધા વિકલ્પ ની સાથે રાગ મિશ્રિત જ્ઞાન. રાગ તે હું નથી, જ્ઞાન તે હું છું. જ્ઞાન તે હું આખો જ્ઞાયક હું છું. બુદ્ધિ છૂટતી નથી, જ્ઞાયક થતું નથી. જ્ઞાતા જ્ઞાતા કરે શું કરતા જાને શું જાનન હારા. જ્ઞાતા થતું નથી ને કરતા બુદ્ધિ છૂટતી નથી. નાયક થાય જ્ઞાતા તો કરતા બુદ્ધિ છૂટે, કરતા બુદ્ધિ છૂટે તો નાયક થાય. તો બે એક સાથે રહેલું છે. 15મી ગાથા સમયસર તે દ્રવ્ય તેમજ ભાવ જીન શાસન સકલ દે. એક નાની નું ભાવ સ્ત્રોત થાય ને, ભાવ સ્ત્રોત તે જીન શાસન દેખે કરે. દ્રવ્ય તેમજ ભાવ તે જીન શાસન દેખે કરે. પેલી નીતિ એની શું હોય છે? બસ એમાં બધું આત્માનું સ્વરૂપ આવી ગયું આખું. અબધ સ્પષ્ટ આત્મા બંધાયેલો નથી, આત્મા સ્પર્શાયેલો નથી અને આત્મા સામાન્ય વિશેષ થતો નથી. આત્મા નિયત છે, અનિયત રૂપે નથી. સમુદ્ર નું દ્રષ્ટાંત વૃદ્ધિહાની રૂપે આત્મા મૂળ સ્વભાવે થતો નથી. આત્મા વિશેષ રૂપે અન્ય થતો નથી. આત્મા અનન્ય એકબીજા અન્ય થતો નથી, એક રૂપ છે. બધા ગુણોના ભેદ હોવા છતાં પણ અભેદ છે. એવું સામાન્ય વિભાવ સાથે સંયોગ વિભાવ રૂપે થતો નથી. એવો આત્મા છે. એવા આત્માને ઓળખે તો જીન શાસન સકલ દેખે. આખું જીન શાસન એમાં જેવું આત્માનું સ્વરૂપ. આત્મા બંધાયેલો નથી, સ્પર્શાયેલો નથી. આત્મા વિશેષ રૂપે થતો નથી. આત્મા અન્ય થતો નથી. આત્મા વૃદ્ધિહાની રૂપે થતો નથી. આત્મા બીજાના સંયોગ એના જેમ અગ્નિ ઉષ્ણ થાય એમાં આત્મા શીતળ રૂપે છે. વિભાવની ઉષ્ણતા એમાં નથી. એ બધી રીતે આત્માનું સ્વરૂપ ઓળખે મૂળ દ્રવ્યને અને મૂળ દ્રવ્ય ઉપર દ્રષ્ટિ કરે અને પર્યાયનું સ્વરૂપ સાથે ઓળખે. એ જીન શાસન સકલ દેખે. આવું આત્માનું સ્વરૂપ ઓળખે યથાર્થપણે એમાં બધું આવી જાય છે. આ બધું હોવા છતાં પણ એ પોતે આવો અબધ સ્પષ્ટ છે. એમાં આવે છે ને કમલીનું પત્ર છે એ પાણીથી નિર્લેપ છે. એની સમીપ જઈને જોવે તો એ બંધાયેલું સ્પર્શાયેલું દેખાય. અંદરમાં જોવે તો બંધાયેલું સ્પર્શાયેલું નથી એટલે ભૂતાર દ્રષ્ટિથી જોવે તો ભૂતાર દ્રષ્ટિથી બંધાયેલું સ્પર્શાયેલું નથી અને અભૂતાર્થી જોવે તો એ બંધાયેલો સ્પર્શાયેલો દેખાય છે. એટલે એને મૂળ વસ્તુ સ્વરૂપે જો અને આ અભૂતાર દ્રષ્ટિથી એ રૂપે છે પર્યાયમાં, પણ દ્રવ્ય દ્રષ્ટિથી એ રૂપે નથી.
એવા આત્માનો અનુભવ કરે, એવા આત્માનો અનુભવ કરે. એ જીન શાસન એ આખું જીન શાસન એમ આવી ગયું. આવી ગયું એમાં. મૂળ વસ્તુને જાણી તો આખું જીન શાસન, આખો મુક્તિનો માર્ગ, આખી સ્વાનુભૂતિ બધામાં આવી ગયું. तो ये तो मुनियों को जो है नहीं मान रहे, वो जवाब देना हमको वापस नहीं आता. द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनि और द्रव्यलिंगी सम्यक दृष्टि, पर इसके बारे में आप खुलासा कर देंगे तो मैं ये शंका मिट जाएगी मेरी. आज क्या द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनि और सम्यक दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि, तो उसमें क्या पूछना है? ये मुनियों के बारे में, अब जैसे आज के जो मुनि हैं हमको दिखें तो अब वो वंदना करना या नहीं करना कैसे, क्या मतलब ये आपके पर निर्भर है. नहीं, उसका तत्व क्या है वो बोलता है. नहीं, शंका जो है वो नहीं. और दूसरे लोग बाग में से ये बोलते हैं, हमको आप इनका जवाब देना ना. तो जवाब क्यों दे, अपने अधिकार नहीं है जवाब देने का, हमने का समझ लेना क्यों. मिथ्या दृष्टि तो आत्मा को जानते ही नहीं है. ये स्व पर के एकत्व बुद्धि, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, ये विभाव मेरा स्वभाव, इस सब में एकत्व बुद्धि मिथ्या दृष्टि को तो हो रही है. एकत्व बुद्धि हो है. सच्चा मुनि तो छठे साथ में गुंसा ने जुड़ने वाला है. अंतर्मूर्त अंतर्मुनि स्वानुभूति होती, यथार्थ मुनि होते. इसको तो स्वानुभूति तो है ही नहीं, इसलिए बाहर से वेश धारण कर लिया. અને वर्तमान में तो पंच महाव्रत आदि जो शास्त्रों में कहा है, वैसे भी ऐसी क्रिया भी वर्तमान में तो नहीं है. जो शास्त्र में आहार कैसा लेना, ऐसी क्रिया वो भी बाहर में नहीं है अत्यार में मुनि में तो. और अरे पहले चौथे काल में द्रव्यलिंगी मुनि तो क्रिया सब पालते सब करे तो भी भीतर में तो एकत्व बुद्धि हो रही. वो शुभ भाव में सब एकत्व, शुभ भाव से मेरा कल्याण हो जाएगा, शुभ भाव में रुचि रहती है. ऐसा मुनि होता है तो ये मुनि तो नहीं है. वास्तविक मुनि की दशा नहीं तो मुनि नहीं है. और सम्यक दृष्टि मुनि द्रव्यलिंगी बाहर में वेश धारण कर लिया और सम्यक दर्शन हो गया. तो सम्यक दर्शन तो है पर मुनि की दशा नहीं है. इसको मुनि दशा नहीं, बाहर में वेश तो है, मुनि की दशा नहीं है. इसको सम्यक दर्शन तो हुआ है. इसको और बाहर में कैसा व्यवहार करना, ये तो अपने जैसा समझना कि वंदन व्यवहार किसको होता है. ये यथार्थ भीतर में दशा प्रकट हो, इसको वंदन व्यवहार वो सच्चा मुनि तो वो हो सकते हैं. और ये शास्त्रों में भी ऐसा जैसे पांचवें आर्य वो कहते हैं पंचम काल के आखिर तक चतुर्विधि संग रहेगा, तो बस आखिर तक रहेगा. पर वर्तमान में तो कोई देखने में तो परीक्षा अपने को करनी पड़ती है. वर्तमान में कोई देखने में तो आता नहीं है. रहता है पर रहता ही तो कभी कभी होते, ये तो कोई होते ही है पर वर्तमान में देखने में नहीं आता है. ऐसा निषेध नहीं है, होते कोई मुनि होते ही तेरे वर्तमान में ये देखने में कोई आता नहीं है. उसमें ऐसा कोई काल आ जाता है वर्तमान देखने में नहीं आता है. मुनि सच्चा मुनि देखने में आता नहीं है. पहले हो गया सब आचार्य हो गया, वर्तमान में तो कोई देखने में आता है. निषेध नहीं है. पंचम काल में छेड़े सुधी मुनि होते रहते पर बीच में कोई बार नहीं भी होते. अत्यारे देखने में नहीं आता है. ऐसे मार्ग बताने वाला एक गुरुदेव हुआ, उसमें मार्ग सच्चा बताया पर मुनि तो कोई देखने में अत्यारे वर्तमान में आता नहीं है. क्या हो देखने में नहीं आता है. क्या हो सकते लेकिन देखने में नहीं, वर्तमान देखने में आता नहीं है. वर्तमान कोई काल ऐसा आ जाता है अत्यारे देखने में नहीं हो सकता है. पंचम काल चेरी तब वो होता है. लिखा हुआ है तो ये भी ठीक है, परंतु लिखा हुआ है बराबर है. वर्तमान में कोई कोई काल ऐसा आ जाता है, होता है नहीं होता है, होता नहीं होता. निषेध नहीं है. नमोस्तु जो भी करना है वास्तव में नमस्ते तो किसको करना है? सच्चा देव गुरु को नमस्कार करना है. बाहर में वेश धारण कर लिया है तो
वेश को क्या नमस्कार होता है? अष्टपाउड में क्या आता है? मुनि आचार्य कहता है सच्चे मुनि को नमस्कार होता है। कैसे करना नहीं करना अपने भाव के आधार पर रहता है, पर लाभ तो सच्चे मुनि को नमस्कार। अष्टपाउड में शास्त्र में कौन कौन लिखते हैं? सच्चे मुनि को नमस्कार करना। अच्छा करना, परीक्षा तो करनी पड़ती है। मोक्ष को जिसको मोक्ष की इच्छा होवे, मोक्ष का कल्याण जिसको करना है, इसको परीक्षा करके सब ग्रहण करना चाहिए। बिना परीक्षा किए आज मोक्ष का स्वरूप कैसे? आत्मा का स्वरूप समझना है, शरीर मेरा नहीं, विभव स्वभाव मेरा नहीं, मैं नायक, ये सब विचार करके परीक्षा करके सब नक्की करते हैं। बार में सच्चा देव, सच्चा गुरु, सच्चा शास्त्र सबको परीक्षा करे। जिसको मोक्ष की इच्छा हो परीक्षा, इतना तो क्षय से मिला है। आत्मा से आत्मा का प्रयोजन हो तो इतना तो परीक्षा हो सकती है। तो मुनि के आचार्य से परीक्षा बहुत सरल है। परीक्षा ये नहीं है, कोई शास्त्र आचार्य कोई बिल्कुल पालते नहीं। जो ऐसा हो तो अपने लोग दिक्कत में आ जाते हैं, सच्चे रोके नहीं। जो बाहर शुद्धि, बाह्य शुद्धि में शुद्धि है तो परीक्षा में क्या दिक्कत है? कि मुनि चेहरा है, साथ में सब ले जाता है, सब सेवा होती है, उसमें क्या परीक्षा में क्या? ये नहीं मुनि है, एक भी सच्चे बताओ। हाँ हाँ, ये मैं नाम अभी उनको तो अपन मानेंगे कि नहीं मानेंगे? उनके तो आचार किसी कठिन तपस्या है, पूरी करते हैं तो ये मेरा नाम देने वाले तो उसको प्रणाम करना नहीं करना प्रश्न उठता है। जो बाह्य आचार्य से होगा तो शास्त्र दोनों में जिन्हें कहा है कि ऐसा समाज में कुछ विरोध नहीं हो, इसलिए वो द्रविलिंगी मुनि द्रविलिंग का आचार बराबर पालते हैं। मुनि तो ये नहीं के भाव से प्रणाम करना, तत्व को महत्व ये न करना अपने ऊपर है, तो बाहर की बात है ना। कल्याण तो अपने स्वरूप को पीछा नहीं तब होता है। मैं नायक हूँ, मैं जानने वाला हूँ, ये सब मेरा स्वरूप नहीं है। शुभाशुभ भाव से मैं लीन हूँ। ये शरीर में जड़ तत्व है, मैं जानने वाला आत्मा हूँ। ये कैसे समझ में आवे, इसकी जिज्ञासा, इसमें रुचि सब होना चाहिए। अशुभ भाव से बचने के लिए शुभ भाव, सच्चा देव, गुरु, शास्त्र, इसकी महिमा आती। पर मेरे शुद्धात्मा कैसे ख्याल में, मैं शुद्धात्मा का स्वरूप कैसे पहचानो? कि प्रतीत, ज्ञान, इस स्वरूप में प्रतीत में सम्यक दर्शन आत्मा में होता है, सम्यक ज्ञान आत्मा में होता है, सम्यक चारित्र आत्मा में होता है, सब आत्मा में होता है, बाहर से तो नहीं होता है, सब आत्मा में होता है। और साथ में शुभ भाव का व्यवहार होता है। पंच महाव्रत अनुव्रत सब शुभ भाव होता है। भीतर में चारित्र तो स्वरूप में सहानुभूति होवे तब चारित्र होता है। सम्यक दर्शन स्वरूप की श्रद्धा, ज्ञान उस आत्मा का आश्रय में होता है। इसकी रुचि, जिज्ञासा, भावना सब ऐसा करना, इसकी रुचि, तत्व का विचार, ये सब करना चाहिए। इससे भव का अभाव हो सकता है। पीछे ये बाहर क्या करना है नहीं करना है, ये सब समझ में आ जाएगा। पहला भव का अभाव क्या रहे, कैसे होवे, ये लगनी लगाना, ये तब तत्व का विचार करना। ये तो सब बाहर का है। प्रणाम नहीं प्रणाम, ये तो सब बाहर का है। वो समझ में आ जाएगा तो ये अपने आप ये आ जाएगा, सब आ जाएगा, आ जाएगा। ये तो विचार करना चाहिए। प्रणाम के लोग को सोचना चाहिए, उसका उपाय या नहीं तो विचार करना चाहिए। ये सब वांचने में या मोक्ष में प्रकाश में सब आते गुरुदेव बहुत समझाया है, सब विचार करके नक्की करना चाहिए। द्रव्यलिंगी जैसे मिथ्या दृष्टि होता है बहन श्री, तो सम्यक दृष्टि भी हो सकता है। द्रव्यलिंगी मुनि तो सजा लगी है उससे। सम्यक दृष्टि वर्तमान में ऐसा नहीं, ऐसा होता है द्रव्यलिंगी सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि भी द्रव्यलिंग के साथ में सम्यक दृष्टि होते हैं धारण कर दिया, ये सब क्रिया करते हैं। छठे
साथ में पुनस्थान वाले मुनिराज भी हाथ में ही रहते हैं। हाथ में कोई भीतर की दशा कोई इसके साथ अद्भुत, में रहती है। इस दशा कोई अद्भुत रहती है इसकी, तो इसकी दशा अद्भुत रहती ही चलती है। मुनि की तो हाथ में आ लेते, ये तो बाहर हाथ में आ लिया, इसे कहीं भीतर में ऐसी दशा हो गई, ऐसा नहीं होता। वो तो कोई अजब होता ही भावलिंगी मुनि छठे साथ में घुसता नहीं। शरीर कहाँ है, आत्मा क्या है, भीतर में चला जाता है, अंतर्मुख में चालते चालते भी भीतर में चला जाता है, हार लेते भीतर में चला, निर्विकल्प हो जाता है, निर्विकल्प दशा हो जाता है। भावलिंगी और द्रव्यलिंगी को द्रव्यलिंगी और दृष्टि होवे तो कुछ नहीं, और सम्यक और सम्यक दृष्टि होवे तो कुछ। इसको ऐसे क्षणिक क्षण सम्यक दृष्टि करें, मुनि को तो क्षणिक क्षण हो जाता है। इतनी दशा होती, क्षणिक क्षण स्वानुभूति मुनि को होती है। सम्यक दृष्टि को कोई बार होती है, कोई बार सम्यक दृष्टि को होती है। ये तो क्षणिक क्षण आलते चालते खाते पीते सब निंद्रा एक जरा लेते है, फिर निंद्रा में जागे तो स्वानुभूति, क्षण में स्वानुभूति, ऐसी मुनि की दशा होती है। ये तो शुभ भाव की क्रिया है, अशुभ भाव छोड़कर त्याग ले लिया, त्याग लेकर ऐसा पछाण ले लिया कि ऐसे हार लेना, ये शुभ भाव की क्रिया है। पर भीतर की दशा कोई जुदी रहती है, ये तो शुभ भाव की क्रिया है। ऐसा कोई अपवास कर लेते, कोई त्याग कर लेते, ऐसे मुनि की क्रिया धारण कर ली, हाथ में हार लिया, त्याग कर दिया कि मैं ऐसे हार नहीं लो, ऐसे हार लो। ये सब क्रिया है, तो बाहर की क्रिया है, इसलिए भीतर में दशा हो गई ऐसी तो नहीं है। शास्त्र में भी सम्यक दर्शन तो होता है, चक्रवर्ती को भी होता है, तो कोई अजब होती है, ऐसा मुनि नहीं हो सकता। यह स्वर्णपुरी अति पावन